السلام علیکم، آج 9 بجے میں خوش آمدید، میں ہوں کرن رسوی اور میں ہوں علی عابد۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اور بات کریں گے بنوں کی۔ الیکشن کمیشن نے میئر بنوں کی نشست پر دوبارہ گنتی کا حکم معطل کر دیا ہے۔ ہنگامہ کیس میں چیف الیکشن کمشنر نے ڈی پی او بنوں کی سخت سرزنش کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولنگ اسٹیشنز کو تباہ کر دینا معمولی بات نہیں ہوتی۔ خواتین کو پولنگ اسٹیشن سے اغوا کرنا انتہائی سنگین واقعہ ہے۔ دوسری جانب پولنگ اسٹیشن پر حملے کے خلاف بکا خیل قبائل نے میران شاہ میں احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ بکا خیل پولنگ اسٹیشن پر حملے کا مقدمہ صوبائی وزیر ملک شاہ کے بھائی سمیت 21 افراد کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔ 4 پولیس اہلکاروں کو بھی مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے۔ الیکشن میں میئر بنوں کی نشست پر دوبارہ گنتی۔ بکاخیل میں پولنگ اسٹیشنز پر حملہ اور انتخابات ملتوی کرنے کے کیس کی سماعت ہوئی، جس میں الیکشن کمیشن نے تمام پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ گنتی کا حکم معطل کیا۔ وکیل JUI نے موقف اپنایا کہ 10,000 سے کم مارجن پر ہی دوبارہ گنتی ہو سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے آئندہ ہفتے طلب کر لیا۔ پولنگ اسٹیشنز پر حملے سے متعلق وکیل JUI نے بتایا، صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ مسلح افراد کے ہمراہ پولنگ میٹیریل لے کر فرار ہوئے۔ وزیر کے بھائی اور بیٹے بھی براہ راست ملوث ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے DPO بنوں کی سرزنش کرتے ہوئے کہا، کسی نے ملزمان کو بچانے کی کوشش کی تو وہ نہیں بچے گا۔ خواتین کو پولنگ اسٹیشن سے اغوا کرنا انتہائی سنگین واقعہ ہے۔ یہ سب کیسے اور کیوں ہوا؟ پولنگ اسٹیشنز کو تباہ و برباد کر دینا معمولی بات نہیں۔ DPO بنوں نے کہا، اب تک 18 مشکوک افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے صوبائی وزیر شاہ محمد، ان کے بھائی اور بیٹے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت منگل تک ملتوی کر دی۔ ادھر پولیس نے بنوں میں پولیس اسٹیشن پر حملے کا مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمے میں وزیر ٹرانسپورٹ ملک شاہ کے بھائی سمیت 21 ملزمان کو نامزد کیا گیا۔ دوسری جانب بکاخیل میں پولنگ اسٹیشن پر حملے کے خلاف میران شاہ روڈ پر احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے گرفتار افراد کی رہائی اور مقدمات ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ ادھر الیکشن کمیشن نے KPK کے بلدیاتی انتخابات میں کامیاب امیدواروں سے اخراجات کے گوشوارے بھی طلب کر لیے ہیں۔ کامیاب ہونے والے امیدواروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ 10 دنوں میں انتخابی اخراجات کے گوشوارے جمع کرائیں تاکہ کامیابی کا اعلامیہ جاری کیا جا سکے۔ 10 روز میں جو کامیاب امیدوار اپنے گوشوارے جمع نہیں کروائیں گے، ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روک لیا جائے گا۔ PTI کو ہوم گراؤنڈ پر شکست کیوں ہوئی؟ وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو لوکل گورنمنٹ الیکشن میں شکست کی رپورٹ موصول ہو گئی۔ رپورٹ میں اپنوں کو نوازنا اور اقربا پروری کو تحریک انصاف کی شکست کی بڑی وجہ قرار دیا گیا ہے۔ ہوم گراؤنڈ پر کیوں ہارے؟ PTI کی شکست کی وجہ کیا بنی؟ رپورٹ وزیر اعظم کو موصول ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گورنر، صوبائی وزراء اور ارکان اسمبلی کی حمایت یافتہ امیدواروں کو ٹکٹ جاری کیے گئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ پرانے کارکن شفیع جان کو نظر انداز کر کے وزیر مملکت شہریار آفریدی کے حمایت یافتہ امیدوار سلمان خان کو ٹکٹ دیا گیا۔ شفیع جان نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا اور PTI سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ پشاور کے میئر کے لیے گورنر شاہ فرمان کے حمایت یافتہ امیدوار رضوان بنگش کو ٹکٹ دیا گیا، جو ہار گئے۔ بڑبیر سے چیئرمین کی نشست کے لیے لڑنے والے امیدوار عبدالجبار کو بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ڈپٹی اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی محمود جان کے بھائی احتشام خان کو بھی شکست ہوئی۔ وزیر تعلیم شہرام ترکئی کے قریبی رشتہ دار بلند اقبال بھی نشست نہ نکال سکے۔ لکی مروت میں PTI MPA ڈاکٹر ہشام انعام اللہ نے پارٹی کے بجائے سیف اللہ برادران کی حمایت کی، جو جیت گئے۔ 4 سدہ میں MNA فضل محمد خان کے دونوں حمایت یافتہ امیدوار شکست کھا گئے۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ KPK محمود خان نے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ نے کہا کہ KPK الیکشن بد انتظامی کی وجہ سے ہارے۔ پارٹی کے ارکان ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے۔ PTI مقامی رہنماؤں نے پارٹی کی جانب سے نامزد امیدواروں سے اختلاف رکھا۔
वजीर आजम ने कहा कि हमें पहले मरहले के नताइज से सबक सीखना होगा। पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात का फायदा मुखालफीन को हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन पर शोर शराबा किया जा रहा है, लेकिन किसी को भी ये एहसास नहीं है कि इंतखाबात जदीद और तब्दील शुदा निज़ाम की शुरुआत है। ऐसा निज़ाम कामयाब जमहूरियतों में होता है। वजीर आजम इमरान खान ने अपना वजन साफ और शफाफ बल्दियाती इलेक्शन के पलड़े में डाल दिया। ट्वीट में वजीर आजम ने लिखा कि 74 साल तारीख में पहली बार बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट निजाम है। ऐसा निजाम कामयाब जमहूरियतों में होता है। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन पर शोर शराबा किया जा रहा है। किसी को एहसास नहीं कि इंतखाबात जदीद और तब्दील शुदा निजाम की शुरुआत है। बराह रास्त मुंतखब तहसील नाज़मीन गवर्नर्स बेहतर बनाएंगे। ऐसे निजाम से मुस्तकबिल के लीडर्स तैयार होंगे। खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन में कौन फातेह और कौन मफतूह, ये बहस अपनी जगह, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद जमहूरी निजाम की मजबूती की तरफ एक मजबूत कदम है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि थोड़ा सा हाथ पीछे किया तो आपने KPK का नतीजा देख लिया। पूरे मुल्क में अब यही नताइज होंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में फजलुर रहमान ने कहा, इस्तेहकाम के जिम्मेदारों ने धांधली करके पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम बनाया। हम कह रहे थे कि साहब नतीजे जाली हैं, हुकूमतें जाली हैं, इनकी धांधली की पैदावार हुकूमतें हैं। आज जब थोड़ा सा उन कुव्वतों ने अपना हाथ पीछे किया तो फिर अंजाम आपने सुबह खैबर पख्तूनख्वा में देख लिया या नहीं देख लिया। हम एक मुस्बत सियासत की बात करते हैं, हम कौमी धारे में हैं, हम पुरअमन सियासत की बात करते हैं, हम मुस्तहकम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम मुस्तहकम आइन की बात करते हैं और इस मुल्क के मुस्तहकम निजाम की बात करते हैं। इसको अगर गैर मुस्तहकम किया तो किसने किया? इसको मुस्तहकम किया इस्तेहकाम के जिम्मेदारों ने धांधलियां करके उसको गैर मुस्तहकम बनाया है। लेकिन रहनुमा साद रफीक कहते हैं इमरान खान को अपनी कारकर्दगी देखनी चाहिए। अपोजिशन को छोड़े, खैबर पख्तूनख्वा में PTI का सियासी जनाजा निकल गया। अब हुकूमत पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात ही नहीं कराएगी। मेरा ख्याल है कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात अगर हुकूमत के बस में हुआ तो वो तो नहीं कराएगी। खैबर पख्तूनख्वा में वोट की ताकत से PTI की सियासी तदफीन हुई है और अभी ये अमल शुरू हुआ। अवामी अदालत का मूड ये बता रहा है सुनामी वापस जा रही है। जब भी लोगों को वोट डालने का मौका मिला वो काम को वोट देंगे, वो आइन और कानून की हुक्मरानी करने वालों को वोट देंगे। इमरान खान साहब को इन कामों और हरकतों से बाज आ जाना चाहिए। अपनी फिक्र करें। उन्हें अभी तक अपने मुखालिफों की फिक्र पड़ी हुई है, अपनी कारकर्दगी टके की नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब को वतन तो उन्होंने जरूर आना है, पर वो तभी आएंगे जब उनकी जमात उनको दरखास्त करेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि हुकूमत से डिलीवर नहीं हो रहा है, मुल्की हालात बिगड़ रहे हैं। हमने काम करके दिखाया है, इख्तिदार में आए तो काम करके दिखाएंगे। बलूचिस्तान को हक देने और KPK का नाम रखने की बात इख्तिदार में आने से पहले नहीं की थी। अगर ये बात पहले कहता तो इख्तिदार में ना आने दिया जाता। जाली रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया। DI खान पुलिस ने वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के कहने पर पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज किए। हम ऐसे हथकंडों से नहीं घबराएंगे। परसों मैंने चैनल पे देखा, मुझे किसी ने क्लिप भेजा, उधर भी वो धमकियां दे रहा था कि मैं जो है किसी को फंड नहीं दूंगा। और भाई अगर आप में इतनी कोई गैरत होती, कोई थोड़ा सा आपको होता तो आज तो आप बल्दियात इलेक्शन हार गए, आपका भाई कैसे दफ्तर जाएगा। साथ ही लकी मरवत में आपने जिस मिनिस्टर को निकाला उसने 4 सीटों पे आपको शिकस्त दे दी। आप मुझे बताएं कि DI खान से क्या कर सकते। KPK में PTI की दूसरी बार हुकूमत है, तहम सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में PTI को इस बार शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। ऐसा क्या हुआ कि अवाम ने PTI को मुस्तरद कर दिया? अवाम इस बारे में क्या राय रखते हैं, आपको दिखाते हैं।
लोग मुतनफ़र हो चुके हैं इस बात से कि ये महंगाई, हम अपने बच्चों के लिए रिज़्क पैदा करें कि वोट डालें। अगर सहूलत हो तो हम सारा दिन लाइन में खड़े होकर हम वोट पोल करें। पीटीआई की मेन वजह ये महंगाई है और तो कोई खास वजह नहीं। हुकूमत जब से आई है यही हमें दिन ब दिन, ये कभी पेट्रोल, कभी डीजल, कभी ये दिन ब दिन महंगाई हो रहा है। तो इसकी वजह यही, सबसे बड़ी रीजन यही है। सबसे बड़ी वजह महंगाई है, दूसरा इनमें आपस में बेइत्तेफाकी की वजह से हारे हैं। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और आज़म सवाती की माफी कबूल कर ली। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी और आज़म सवाती का माफीनामा कबूल करते हुए कहा कि तमाम इदारे आपके हैं, उन्हें भला कहना दुरुस्त नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में आज़म सवाती का कहना था कि अब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में कोई खलीज बाकी नहीं रहनी चाहिए। माशाल्लाह बड़े अच्छे फैसले करने वाला है। कल भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने जो कैबिनेट कमेटी बनाई हुई है उसमें भी हमने बड़े अच्छे फैसले किए और हमने यही अंदिया दिया कि हमें अब हर मुश्किल को पार करने के लिए, उसको हल करने के लिए बड़ा ही मुस्बत तरीका अख्तियार करना पड़ेगा ताकि हमारे दरमियान में, हुकूमत के दरमियान में और इलेक्शन कमीशन के दरमियान में कोई खलीज जो है वो न रहे। रवां साल सितंबर में वफाकी वजीर आजम स्वाति और फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने आजम स्वाति और फवाद चौधरी को शुकॉज नोटिस जारी किए थे। शुकॉज नोटिस मिलने के बाद आजम स्वाति आग बगोला हो गए थे और मजीद संगीन इल्जाम तराशी की थी। उन्होंने क्या कहा था, आपको सुनवाते हैं। बड़े मियां उसके जेब की आप गड़ी हैं। मौलाना फजलरहमान और मरियम सफ्तर ने जो बातें की उनको कितने नोटिस मिले, आज मुझे नोटिस दे रहे हो। इंशाल्लाह सीसा प्लाई दीवार की तरह खड़े हैं, रोको अगर रोक सकते हो। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कल्लात में 12 अफराद में ओमिक्रॉन वायरस की मौजूदगी की इत्तलात पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आला ने मुतासरा अफराद को फौरी तौर पर करंतना करने की हिदायत कर दी। हिफाजती वैक्सीन लगाने और वायरस के टेस्ट की पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने अवाम से जल्द वैक्सीनेशन कराने की अपील भी की है। उधर लंदन में ओमिक्रॉन वायरस के बढ़ते हुए खतरात के बावजूद क्रिसमस शॉपिंग के लिए रश बढ़ गया है। लोगों की बड़ी तादाद खरीदारी करती नजर आती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर के पहले हफ्ते में ओमिक्रॉन के खदशात की वजह से रिटेल कारोबार में कमी आई। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान बरतानिया में कोरोना के केसेस में 60% इजाफा हुआ। 90,000 नए मरीज सामने आने लगे हैं। हुकूमत ने ओमिक्रॉन से शदीद मुतासरा कारोबार के लिए 1 अरब पाउंड की इजाफी इमदाद का ऐलान किया है। चीन के सूबे सिचुआन में नवादरात की बहाली से मुतालिक म्यूजियम शहरियों के लिए खोल दिया गया। मुल्क की कदीम तारीख में छुपे राजों में दिलचस्पी रखने वाले शहरी इन नवादरात की बहाली का अमल बराह रास्त देख सकते हैं। म्यूजियम में नवादरात की बहाली की जगह अलग और उनकी नुमाइश की जगह अलग अलग रखी गई है। हुकूमत ने मुल्क भर से माहिरीन को म्यूजियम आने और दरियाफ्त होने वाली नवादरात का जायजा लेने और उनकी बहाली की तजावीज पेश करने की दावत दी है। नाज़रीन, दुबई सयाहत, रिहाइश और कारोबार के हवाले से दुनिया के पसंदीदा तरीन शहरों में से एक है। पाकिस्तान में सयाहत के शोबे की क्या सूरत हाल है और दुबई जैसी मिसालों से क्या सीखा जा सकता है, ये आप जान सकेंगे इस रिपोर्ट में। दुबई सयाहत और रिहाइश के लिए दुनिया के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले इलाकों में शुमार किया जाता है। कोरोना पाबंदियों में नरमी के बाद गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद ने दुबई का रुख किया। हुकूमत दुबई को 2025 तक ऐसा शहर बनाना चाहती है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा गैर मुल्की आते हों। Becoming the #1 most visited city in the world is definitely our aim, and also becoming the best city to live in is our aim as well. सैरो तफरीह और खेलों के बेहतरीन मौके, रिहाइश और सफर की आरामदेह सहूलियात के साथ दुबई सयाहों के लिए पुरकशिश तरीन जगह है। Dubai's success is A,
been the strengths, right? The multiculturalism, the fact that there is such an amazing partnership between the private and public sector. खूबसूरत साहिलों से लेकर जन्नत नजीर वादियों और बर्फपोश पहाड़ों तक पाकिस्तान सयाहों के लिए हसीन सयाहती मकामात का खजाना है। सवाल ये है कि हम सयाहती शोबे की मजीद तरक्की के लिए दुबई से क्या सीख सकते हैं। हम दुबई के मॉडल से बहुत सारी अच्छी बातें सीख सकते हैं, जिस तरह उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया है, अकोमोडेशन और हॉस्पिटैलिटी की जो सर्विसेज हैं उनके मेयार को बहुत बुलंद किया है, अपने ह्यूमन रिसोर्स को तैयार किया है, अपनी जो एयर कनेक्टिविटी है उसको बहुत इम्प्रूव किया है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी समेत मुख्तलिफ सहूलियात की फरहमी से कौमी खजाने में कीमती ज़रे मुबादला का इजाफा किया जा सकता है। बाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलके तमाम सूबों के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है, जिसके जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जा रहा है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान का सयाहती शोबा एक दिहाई के अंदर $38.5 अरब तक पहुंच सकता है। अमीन खासखेली, आज न्यूज।